तो लास्ट क्लास में हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमने मोती कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ये फाइंड आउट किया था, राइट? ओके, लेट्स स्टार्ट विद वन मोर क्वेश्चन। लास्ट टाइम हम लोग टाइम की कमी की वजह से कर नहीं पाए थे, उसको भी आज कर लेते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। अ मैन, कोई भी मैन ले लो, आप अपने आप को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, मान लो कि एक क्षिति नाम की लड़की है। अब वो क्या कर रही है, वो यहाँ से मोशन करना शुरू कर रही है अपना, लाइक लेट्स से Shiti moves first of all in the east direction. Let's say she moves in north direction. She moves in north direction with velocity 8 meter per second. कितनी वेलोसिटी से जा रही है? 8 मीटर पर सेकंड for 2 seconds. कितने टाइम के लिए बेटा? For 2 seconds. And immediately she changed the direction. Let's say एक मिनट इसको चेंज करते हैं। Let's say it is east and then she changes to north direction. Fine. So we can say initially she moves in the east direction and after that suddenly she changed the direction towards the north. The velocity towards the north is 8 meter per second and she covered distance for the 2 seconds. So in the north direction also she is moving with immediately she changed the direction. ईस्ट और नॉर्थ दोनों में 16 मीटर तक जाती है। Yes, immediately she changed the direction towards north and moving with velocity 8 meter per second for next 2 seconds. Got it, everyone? Yes. Okay, Yes, so let's sir. say if we say this is north, this is south, this one is east, and this one is west. So let's say these are the direction that we are taken. Fine. अब हो क्या रहा है कि first of all she moves in the direction east. तो वो सबसे पहले तो बेटा east direction में जा रही है। कितनी स्पीड से जा रही है? तो for with the velocity of 8 meter per second. कितनी वेलोसिटी से आ रही है? 8 मीटर पर सेकंड फॉर द टाइम पीरियड 2 सेकंड. तो लेट्स से हर इनिशियल वेलोसिटी इज 8 मीटर पर सेकंड एंड द टाइम पीरियड इज 2 सेकंड. शी टर्न द डायरेक्शन, इमीडिएटली उसने डायरेक्शन चेंज की. कौन सी डायरेक्शन में जा रही है वो? तो शी इज गोइंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन. तो वेलोसिटी क्या है? तो लेट्स से फाइनल वेलोसिटी इज 8 मीटर पर सेकंड और टाइम कितना ले रहा है? तो 2 सेकंड ले रहा है. क्या यहाँ तक पिक्चर क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस सर। तो देखिए क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे. Let's say she starts her journey from here at t equals to 0 second. After 2 second, उसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा? 8 मीटर पर सेकंड है और टाइम ले रहा है 2 सेकंड. After that she turned the direction. और उसकी डायरेक्शन कौन सी है? This is the final. This is final velocity. Final velocity is 8 meter per second for the time 2 second. तो बेटा आपसे पूछा जा रहा है कि उसकी एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगी विथ डायरेक्शन, आपको बताना है. यू नीड टू फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन. क्या फाइंड करना है? यू नीड टू फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन एंड डायरेक्शन एज वेल. गॉट इट? तो क्या करेंगे समझिए, यहाँ पर
Let's say this is the initial velocity vi and the final velocity is vf. तो ये आपका v initial हो गया और ये आपका v final हो गया बेटा. This is v initial and this is v final. We know that acceleration अगर आपको find करना होता है average acceleration, so we can say change in velocity by change in time, right? So we can say Yes, sir. the time taken by Kshiti is 4 seconds and the velocity is v final minus v initial करेंगे अगर आप with a direction. So let's say average acceleration can be written as, let's say this is average acceleration, which can be written as v final minus v initial by change in time interval. ठीक है, तो आप एक चीज समझिए कि v final minus v initial हमने लिखा है. अगर हमें इसका रिजल्टेंट चाहिए v final minus v initial, अगर आप समझते हैं v final minus v initial का मतलब है कि v final plus minus of v initial, क्या हम ऐसा कर सकते हैं बेटा? Yes, sir. sir. तो क्या Yes, अगर मैं sir. v final में अगर मैं माइनस v initial को ऐड करूं तो माइनस v initial की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अगर ये डायरेक्शन है तो माइनस v initial की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी, देखिए टूवर्ड्स वेस्ट. अरे यस और नो? Yes. क्या ये माइनस v initial हो Yes. जाएगा बेटा टूवर्ड्स Yes, वेस्ट? sir. क्या ये पॉइंट क्लियर है सभी को? Yes, Yes. sir. एंड वी नो दैट कि एक्सेलरेशन का जब आप इसका चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे बेटा, v final minus v initial, basically you are saying कि ये minus v initial है. ऐसा ही हुआ? अरे yes or no? Yes. तो Yes, क्या sir. इसका रिजल्टेंट बेटा Yes. हमें यहाँ मिलेगा? yes or no? Yes, अगर आप Yes, sir. ट्रायंगल लॉ भी अप्लाई करेंगे ना तो भी आपको क्लियरिटी आ जाएगी. देखो v final ऐसा जा रहा है, समझिए कि ये आपका v final है. अगर हमें माइनस वी आई को ऐड करना है तो इस पे हमने ऐड किया माइनस वी आई, राइट? तो v फाइनल, अब तो हम माइनस नहीं लिखेंगे इसको, अब तो हम इसे लिखेंगे सिर्फ वी आई, बिकॉज नेगेटिव डायरेक्शन में ऑलरेडी ले चुके हैं. तो v फाइनल माइनस वी इनिशियल. अच्छा, अब यहाँ पर समझिए कि अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है तो थर्ड इज दिस. अगर आप इसको क्लॉकवाइज में ऐड करते हैं बेटा तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको Yes. उसका रिजल्टेंट मिलेगा. वेक्टर a प्लस वेक्टर b का सम करके उसका रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट कहां पर आता है? उसके डायगोनल पे आता है. अरे यस और नो? सम ऑफ Yes. टू वेक्टर्स Yes, sir. हमने किया है पहले. तो क्या हमें ये डेल्टा भी मिलेगा? ये जो है ये आपका डेल्टा भी आएगा. यस और नो? राइट. सो ये कितना आ जाएगा बेटा डेल्टा वी? अंडर रूट ऑफ वी फाइनल प्लस वी आई. मतलब अगर हम करते हैं लेट्स से वी फाइनल प्लस माइनस वी इनिशियल बाय डेल्टा टी इज 4 सेकंड. ठीक है. तो अब आप मुझे बताइए ये आपका डेल्टा वी जो है वो कितना आएगा? दिस इज 8 मीटर पर सेकंड, दिस इज 8 मीटर पर सेकंड. तो ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर कितना आएगा? देखिए अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर कितना आ जाएगा? क्या 8 रूट 2 आ जाएगा? Yes, sir. क्या 8 रूट 2 आ जाएगा? Yes. सबको क्लियर है ये चीज? Yes. Yes, sir. So Yes, can we sir. write if we talk about its magnitude, if we talk about its magnitude, so it is 8 root 2 by 4. तो फाइनल एवरेज एक्सेलरेशन अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड की तो मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? 2 root 2 इज द आंसर. 2 root 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एंड इफ यू टॉक अबाउट द डायरेक्शन, अगर आप डायरेक्शन देखो तो डायरेक्शन कौन सी आएगी? देखो ये बेटा नॉर्थ डायरेक्शन है और ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन है. और आपका रिजल्ट कहाँ मिल रहा है? नॉर्थ और वेस्ट के बीच में. क्या आपका रिजल्ट कहाँ मिल Yes, रहा है? sir. नॉर्थ और Yes. वेस्ट के बीच में. तो हम ये कह सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट इज द डायरेक्शन बिकॉज आपका रिजल्टेंट तो यहाँ मिलेगा नॉर्थ और वेस्ट के बीच में. यस और नो? सो वी कैन से डायरेक्शन Yes. इज नॉर्थ वेस्ट, Yes, डायरेक्शन sir. इज नॉर्थ वेस्ट. तो लेट्स से इट इज नॉर्थ वेस्ट. बोलो किसी को कोई डाउट हो तो इसमें? सर ये डेल्टा No, वी sir. के समझाओ. क्या हुआ कविश? Yes. क्या ये स्टेप समझ में आया आपको? कम ने कैसे किया बेटा? बेसिकली 8 रूट 2 जो है ना, अब ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको डायरेक्टली पता हो जानी चाहिए. इतना सारा मेथड थोड़ी ना करने बैठेंगे हर बार. ये बेसिक मेथड है.
ये आपको आना चाहिए, लेकिन आपको अब डायरेक्टली पता चलना चाहिए कि जब आप किसी वेक्टर ए और वेक्टर बी का सम कर रहे हैं और इसका रिजल्टेंट आप यहाँ निकाल रहे हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड सेम है और एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट जो है वो क्या हो जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ जो भी आपका है वो, तो √2 टाइम्स ऑफ 8। अगर यहाँ पर मैंने Yes, 9 और 9 yes, लिया sir. होता तो ये कितना होता, √2 टाइम्स ऑफ अरे 9 होता। बोलो आई बात समझ में? Yes, sir. ये चीज अब आपको आनी चाहिए बेटा, ठीक है। बोलिए, अब कोई डाउट है? ऋतु बेटा क्लियर है आपको? Yes, sir. कविश? वो तो डाउट पूछने के बाद गायब ही हो जाता है। चलिए देखिए, आगे देखते हैं। अगर हम बात करेंगे, नाउ वी विल टॉक अबाउट द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स से यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, राइट। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या है कि लेट्स से यहाँ पर हमने ये ले लिया कुछ इस तरीके से कि प्लस से यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है कि एक्सेलरेशन जो है बेटा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, राइट। एक्सेलरेशन कैसा रह रहा है बेटा, कांस्टेंट रह रहा है। तो लेट्स से एट टी टाइम इक्वल्स टू 0 पर पोजीशन क्या है पार्टिकल की, तो 0 है। लेट्स से 1 सेकंड पर, तो 1 सेकंड पे क्या होगा, उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा एंड इनिशियली इट्स वेलोसिटी इज u, फिर बाद में कोई ना कोई डिस्टेंस कवर किया होगा, डिस्प्लेसमेंट किया होगा, 3rd सेकंड में कुछ होगा, 4th सेकंड में, ऐसे करते करते t सेकंड तक हम जा सकते हैं। और at t second we can say the displacement covered by a body is s and final velocity, let's say it is v. When it reaches to at t, for any time t, we can say the velocity of the body is v. So throughout the motion, चाहे 1 सेकंड पे लें, चाहे 2 सेकंड पे लें, या 4 सेकंड पे लें, या t सेकंड पे लें, acceleration of the body is constant, yes or no? क्या बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? Yes. Right? Yes. Here we can say if the constant acceleration is constant. So from this we can say that for a very small interval of time, let's say for the very small interval of time, मान लो मैंने कोई dt टाइम लिया बेटा, तो इस dt टाइम पे क्या बॉडी की वेलोसिटी हम ये मान सकते हैं कि dv होगी? For a very small interval of time, for a very small interval of time, we can say the velocity of the body is dv in a very small amount of time, that is dt. Yes or no? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt लिख सकते हैं क्या? यहाँ पर Yes. हम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt लिख सकते हैं? यस और नो? yes, sir. तो बेटा मैं यहाँ पे लिखूंगा dv इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ dt। dv इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, a टाइम्स ऑफ dt। अच्छा, अब आप यहाँ पे समझिए कि अगर मैं इसको अगर लूं एट t इज इक्वल टू 0 टाइम पर बॉडी का वेलोसिटी है u, अगर हम ये कहें कि t इज इक्वल टू 0 टाइम पर बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, u, मतलब कि इनिशियल टाइम की बात कर रहा हूँ बेटा, और किसी t टाइम पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, तो v है। किसी t टाइम पर बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v है। यस और नो? अरे बेटा समझ में आ Yes, रहा है? sir. सर एक बार वापस बोलो ना सर ये। बेटा अभी तो मैंने कुछ बताना शुरू ही नहीं किया, वापस क्या बताऊं, बता मेरे को। सर ये UV वाला एक बार बोलो ना। मैं ये कह रहा हूं कि किसी टाइम तू अपने घर से निकल रहा है 0 टाइम पर, ठीक, उस टाइम पे तेरी वेलोसिटी कितनी होगी, u होगी बेटा। अरे इनिशियल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय u, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। हाँ और हाँ किसी t टाइम के बाद में उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मानते हैं v। यस और नो? तो नाउ आई एम सेइंग कि यहाँ पर we can say that acceleration is equals to dv by dt and integration is from u to v, मतलब initial velocity to final velocity,
एंड द वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी है तो उसे हमने रिप्रेजेंट किया dv से, राइट? सो व्हाट वी कैन से द इंटीग्रेशन ऑफ dv कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय v and velocity is from u to v, right? And acceleration is constant, acceleration is constant, तो उसको बाहर ले लिया। कहां से कहां तक के लिए इंटीग्रेट करेंगे? तो टाइम 0 से लेके t टाइम के लिए dt को इंटीग्रेट करेंगे। बेटा हमें पूरे टाइम का चाहिए, अगर आपको वेलोसिटी पूरे टाइम के लिए चाहिए तो हम क्या करेंगे? उतने टाइम के लिए इंटीग्रेट करेंगे। समेशन सुना होगा आपने, समेशन करना, राइट? तो यहां पर हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ए है और dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा? t हो जाएगा। dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? t। एंड लेट्स से 0 से t हमने इसे इंटीग्रेट किया है तो dt का इंटीग्रेशन t हुआ, लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट t है, मतलब 0 से लेके t टाइम के लिए बात कर रहे हैं। तो सिमिलरली अपर लिमिट यहाँ पर रखेंगे v, लोअर लिमिट रखेंगे u, तो v माइनस u इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? a इंटू अपर लिमिट t एंड लोअर लिमिट 0, तो v माइनस u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 80। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। Yes, यहाँ पे sir. हम लिखेंगे v is equals to u minus 80. This is the first equation of motion. ये बेटा आपकी पहली इक्वेशन आई। This equation is also given by Newton. This equation is u given by- plus 80 होगा ना? अरे रुक जा, हाँ जस्ट अ मिनट, बोलते बोलते लिखना ही रह गया। v is equals to u plus 80. क्लियर? यस सर ये v माइनस u से एक बार वापस बताओ ना। v माइनस u को इधर लेके जाएगा तो v is equals to u plus 80 हो जाएगा। तो v is equals to क्या लिखेंगे? हाँ सर u वो plus- तो समझ गया, लेकिन ये राइट हैंड साइड पर जो लिखा है ना वो एक बार समझ कौन नहीं सा आया। बेटा? a इंटू टी माइनस 0, हाँ सर उसके ऊपर वाला। ये वाला स्टेप, यस सर, ये वाला, यस सर। इसमें तो कुछ भी नहीं है बेटा। देखो मैंने आपसे ये कहा कि आप अपने घर से निकले तो मान लो उस टाइम पे हम, जैसे मान लो हम रेस करते हैं बेटा, तो रेस करते हैं उस टाइम पे टाइमर जो होता है उस पे हम कहाँ से शुरू करते हैं? 0 से शुरू करते हैं, यस राइट? तो मैंने टाइम t इज इक्वल टू वहां पे रिप्रेजेंट किया है, 0 टाइम से शुरू हो रहा है और किसी टाइम t तक जा रहे हैं हम लोग, राइट? तो मैंने वहां पर लिमिट ली थी 0 से t तक। क्या लिमिट ली थी? 0 से t। तो मैंने पहले रखा अपर लिमिट, ये जो t है इसे अपर लिमिट कहते हैं और इसे लोअर लिमिट कहते हैं। इंटीग्रेशन में आपको सिखाया गया होगा, राइट? कि अपर लिमिट को हम पहले रखेंगे फिर हम लोअर लिमिट को रखते हैं। तो t माइनस 0 हो गया। बोलो आई बात समझ में? Yes, sir. सर। अब कोई डाउट है? यस सर। जय? अगर डेल्टा t हो गया ना, हाँ बेटा आप डेल्टा टी भी कह सकते हो। अगर मान लो यहाँ पर टाइम इंटरवल मान लो यहाँ t2 होता और यहाँ t1 होता तो t2 माइनस t1 करते आप, करते कि नहीं? यस करते ठीक है, हाँ बस उतना ही है, उसमें और कोई चेंज नहीं है। अब समझिए यहाँ पर किसी का माइक ऑन रह गया बेटा, सर। हाँ हाँ तो नाउ वी कैन से v माइनस u इज इक्वल्स टू a इंटू टी। सो v इज इक्वल्स टू बेटा क्या लिख सकते हैं? u प्लस ए टी लिख सकते हैं। बोलो क्लियर है? तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ यस सर। मोशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, यस सर। ये फर्स्ट इक्वेशन। नाउ लेट्स से तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अब हम निकालेंगे। लेट्स से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को आप समझिए। So first of all we have this equation already, v is equals to u plus at। सेकंड इक्वेशन को समझने के लिए हम क्या करेंगे आप समझिए। बेटा हमने 0 टाइम से शुरुआत की और
v वेलोसिटी से हमने ट्रैवल किया, राइट। यहाँ पर आप समझिए, लेट्स से यहां से शुरुआत की हमने किसी t इक्वल टू 0 टाइम पर, ठीक है। एंड इन अ वेरी विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये तो ध्यान रखना है। अब ये हर एक यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, आगे जाता है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ कवर कर रहा है। इस तरह से मैंने एक छोटा सा पार्ट ले लिया कि भाई चलो dt टाइम में इसने ds डिस्प्लेसमेंट किया विद वेलोसिटी v, विद वेलोसिटी v, मतलब कोई ना कोई वेलोसिटी के साथ ही कर रहा होगा डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो क्या हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू ds बाय dt, a very small displacement in a very small interval of time. So we can say it is covered by with a velocity v. So we can say v is equals to ds by dt. बोलो yes or no? Yes, sir. क्या यहाँ तक क्लियर है बेटा सभी को? Yes, sir. Yes, sir. कविश, Yes, sir. देव, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मनश्री, अब समझिए v is equals to ds by dt हो गया। Now let's say ds is equals to, क्या हम v dt लिख सकते हैं? क्या ds is equals to हम v dt लिख सकते हैं? So now v is equals Yes. to, we can say u plus at, v को हम क्या लिख सकते हैं? u plus at। अरे हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन है बेटा, v is equals to u plus at, उसको हमने Yes, प्लेस sir. किया है यहाँ पर, right? Now what we can say ds is equals to, let's say ds is equals to u dt plus at dt। क्या यहाँ तक क्लियर है? ds is equals to u Yes, dt sir. plus at dt। अच्छा, आप समझिए आगे। अब हमें बताया जा रहा है कि 0 टाइम से, रुकिए एक मिनट, मैं इसको जस्ट मिनट लिमिट ले लेता हूं पहले, जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे लिमिट ले लेते हैं। टाइम t इक्वल्स टू 0 पर बॉडी कहां पर होगी? 0 पोजीशन पे। और टाइम t इज इक्वल्स t पे बॉडी कहां पर होगी? किसी s पोजीशन पे होगी। s डिस्प्लेसमेंट Yes, किया sir. होगा उसने, राइट। अब हम क्या करेंगे, जब हमने यहाँ पर दोनों में इंटीग्रेशन मतलब लिमिट ले ली, तो लेट्स से इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू s ds इज इक्वल्स टू, अब इसको सेपरेट कर सकते हैं बेटा, लिमिट से 0 टू t u dt प्लस 0 टू t at dt, ठीक है। अब समझिए, तो ds का इंटीग्रेशन बेटा हो जाएगा s। अब समझिए u dt, तो u कांस्टेंट है, इट्स इनिशियल वेलोसिटी व्हिच इज कांस्टेंट। dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t, लिमिट आएगी 0 से t प्लस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट, 0 से t t dt। बोलो यहां तक कोई डाउट है किसी को? अरे हाँ या ना? No, sir. नो सर। सर लास्ट आगे स्टेप एक और बार समझाओ ना। क्या बेटा? सर लास्ट स्टेप फिर से समझाओ ना। ठीक है, फिर से समझाता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा बेटा ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? s हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है? पहले तो बताओ, आपको इंटीग्रेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले ये बताओ इंटीग्रेशन क्लियर है सभी का? नो सर। अच्छा, यस सर, क्लियर है। अब आप समझिए ये u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी में तो कोई चेंज आना नहीं है भाई। आपने बोला 2 मीटर पर सेकंड से शुरुआत हुई तो इनिशियल वेलोसिटी होगी। अब 2 की 3 तो आप नहीं कर सकते, वो तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी तो जस्ट स्टार्ट होती, तो वो तो फिक्स होगी। तो लेट्स से u इज फिक्स्ड, तो उसको हमने बाहर ले लिया बिकॉज वो कांस्टेंट होगी। नाउ लेट्स से 0 से t dt प्लस एक्सेलरेशन बेटा हम कह रहे हैं कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट, 0 से t t dt। अब बोलो बेटा
कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नो सर। अब आगे देखिए, तो लेट्स से s इज इक्वल्स टू u इंटू, ये dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? लिमिट T. कहां से कहां तक? 0 से t तक प्लस a इंटू, अच्छा बताइए t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? अगर हमें कोई कहे इंटीग्रेशन ऑफ x dx करो तो क्या होता है बेटा? x स्क्वायर बाय 2 होता है। इंटीग्रेशन ऑफ x Yes. dx क्या होता है? x स्क्वायर बाय 2 होता है। यस सर। तो t dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। यस और नो? तो यहाँ पर हम लिख सकते Yes, हैं sir. इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी इज टी स्क्वायर बाय 2, और लिमिट कहां से कहां तक है बेटा? तो 0 से t तक है। 0 से t हमारी लिमिट है। तो लेट्स से s इज इक्वल्स टू u इनटू, अब अपर लिमिट रखेंगे t माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस एक्सेलरेशन इज a, अपर लिमिट इज t स्क्वायर बाय 2 माइनस 0। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं s इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? जीरो No, नहीं sir. होगा सर? क्या जीरो नहीं होगा बेटा? एक के सॉरी, एक के बाद यार तुम्हारा नेटवर्क। Yes, Yes, sir. तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ गया। सो वी कैन से दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन गिवन बाय द न्यूटन। अरे हाँ या ना? नाउ Yes, लेट्स sir. टॉक अबाउट द Yes, थर्ड sir. वन। Yes, sir. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द yes, sir. थर्ड वन। तीसरी जो इक्वेशन है दैट गिव्स द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। तीसरी इक्वेशन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन हमें देगी। तो लेट्स से द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, let's talk about the third equation of motion, right? So first of all, if we say first equation हमारे पास में क्या थी बेटा? v is equals to u plus at। second equation हमारे पास में क्या आ गई? s equals to ut plus half at square। now if we talk about the third equation, तो जैसे आप जानते हैं बेटा थर्ड इक्वेशन जो है वो v और s के बीच का रिलेशन हमें बताना है। so using let's say for the third equation, हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन होता है dv by dt। एक्सेलरेशन क्या होता है? dv by dt होता है, राइट? मैंने तीसरी इक्वेशन बनाने के लिए बेटा ds से मल्टीप्लाई कर दिया। सो लेट्स से एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय ds हियर, एंड दिस dv by dt इज आल्सो मल्टीप्लाइड बाय ds। दोनों तरफ ds से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? No, sir. नो सर। No, sir. dv by dt को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ds से, और यहाँ पर एक्सेलरेशन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ds से। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? अब No, आप एक sir. चीज समझिए, ये जो ds by dt है, इस ds by dt को हम क्या कहेंगे? V। ds by dt को हम क्या कहेंगे? V. v कह सकते हैं। तो लेट्स से Yes, sir. it is v dot dv, it is v dot dv is equals to acceleration a into ds displacement ds, right? अब आप एक चीज समझिए कि हम लोग ये कह रहे हैं कि बेटा जब इनिशियल वेलोसिटी u से शुरू किया था उस टाइम पे बॉडी जो थी वो जीरो पोजीशन पे थी। बॉडी जो थी वो कौन सी पोजीशन पे थी? जीरो पोजीशन पे। लेट्स से मैं यहाँ पर करके बताता हूँ। लेट्स से, सर हाँ बोलो। dv by dt, ये तो हमें पता है कि भाई एक्सेलरेशन आपका dv by dt होता है, राइट? अब समझो dv by dt को बेटा मैंने यहाँ पर ds से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर भी ds से मल्टीप्लाई किया। समझ में आ रहा है कविश? यस बस अब मैंने क्या किया बेटा, जब ds से मल्टीप्लाई किया तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो ds by dt बना इसको मैंने v नाम दे दिया, राइट? क्योंकि मैं एक इक्वेशन बना रहा हूँ और इक्वेशन बनाने के लिए मैंने ये मल्टीप्लिकेशन किया है, ठीक है? अब मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया और मैंने ये कहा कि जब पोजीशन 0 पे था उस टाइम पर वेलोसिटी u थी, इनिशियल वेलोसिटी इज u, और जब बॉडी s पोजीशन में पहुंची तो उसकी वेलोसिटी हो गई v। क्या यहाँ तक क्लियर है?
राइट। अब समझो Sir, ये जो हाँ बेटा, क्या बोल रहा है? S equals to 0 मतलब जीरो पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, मतलब आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, तो एस इक्वल टू 0 से शुरुआत करेंगे ऐसे, ठीक है। अब VdV का इंटीग्रेशन करो आप, तो VdV का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा v²/2, कितना हो जाएगा v²/2, लोअर लिमिट है u, अपर लिमिट है v, इज इक्वल्स टू a इंटू ds। तो ds का इंटीग्रेशन, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कैसा है कांस्टेंट, ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा s, लिमिट कहां से कहां तक है 0, तो 0 से लेकर s। अब आप समझिए, पहले अपर लिमिट रखिए फिर लोअर लिमिट रखिए, राइट। तो लेट्स से पहले मैं अपर लिमिट रखूंगा, तो लेट्स से इट इज v²/2 माइनस लोअर लिमिट इज u²/2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा a इंटू s। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? no sir. तो v² माइनस, हाँ जय क्या हुआ बोल, जय क्या हुआ बताइए जल्दी। मैं तो कुछ नहीं बोला। अच्छा कुछ नहीं बोला, ओके। v² माइनस u²/2 इज इक्वल्स टू as, ठीक है, v² माइनस u²/2 इज इक्वल्स टू as। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा, यहाँ पर इक्वेशन बनेगी v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2as। बोलो यहाँ तक क्लियर है? Yes sir. Yes. यस सर। है किसी को कोई डाउट Yes, इसमें? sir. आप बताओ। नहीं। No, sir. So we have proved three equations of motion. The first equation that we have seen is v is equals to u plus at. Second equation that we have seen s equals to ut plus half at square. And third equation that we have seen is v² minus u² is equals to 2as. ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये सेकंड इक्वेशन होगी और ये थर्ड इक्वेशन होगी, ठीक है। अब समझिए, अब अगर यहाँ पर बेटा हम ग्रेविटी को इंट्रोड्यूस करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन अ स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक। अभी मैं यहाँ पर साइन कन्वेंशन को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट रिप्लेस कर रहा हूँ एक्सेलरेशन को ग्रेविटी के साथ में। आई एम जस्ट रिप्लेसिंग एक्सेलरेशन विद ग्रेविटी g, fine, not considering sign convention right now. So let's say if acceleration a is equals to g, not considering साइन कन्वेंशन, अभी मैं कोई साइन कन्वेंशन नहीं ले रहा हूं इसके अंदर, सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं आपको। तो क्या लिखेंगे, v is equals u plus at, a is replaced by g, फिर s is equals to ut plus 1/2, acceleration will be replaced by g, तो gt square, v² minus u² is equals to 2gs। अब ये बताओ ये s क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर जो s है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, Displacement. डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है, वेरी गुड, ठीक। अब मेरी बात को कान खोलकर अच्छे से सुनिए। अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया कि बेटा अगर आप किसी भी चीज को पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं तो हम उसे पॉजिटिव लेते हैं, अगर किसी भी बॉडी को अगर आप नेगेटिव एक्सिस की डायरेक्शन में लेके जाते हैं तो हम उसे नेगेटिव लेते हैं, और अगर किसी बॉडी को अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाते हैं तो आप उसे पॉजिटिव लेते हैं, राइट। और नेगेटिव के लिए मतलब डाउनवर्ड ले जाएंगे तो उसे क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर अगर हम बात करें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, तो मान लीजिए जैसे कोई ऑब्जेक्ट है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है विद एक्सेलरेशन a, लेकिन अगर आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बतानी है तो ग्रेविटी कहाँ एक्ट करती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन, ये जो ग्रेविटी आप लेंगे तो आप क्या लिखना होगा, a इज इक्वल टू माइनस जी लिखना होगा, ये क्लियर है यहाँ तक सभी को? कोई डाउट? नो। यस सर। तो यहाँ पर जब आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी आएगा उस टाइम पर हम क्या लिखेंगे, v इज इक्वल्स टू u माइनस जी टी, s इज इक्वल्स टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर,
and v square minus u square is equals to minus 2gs. बोलो यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. किसी को कोई डाउट है इसमें तो बताएं. No, sir. No. ठीक, चलो बहुत बढ़िया. अब यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं. We have only 8 minutes. Now let's talk about the motion under gravity. अब हम बात करेंगे किसकी? मोशन अंडर ग्रेविटी. जैसे हमने यहाँ पर लिखा है वो एक ग्रेविटी के मैं इक्वेशन बताने के लिए आपको बताया था कि ये अगर आप a इज इक्वल टू माइनस जी लेते हैं तो हमारी इक्वेशन कैसे बनती है, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोशन अंडर ग्रेविटी इन अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात चल रही है अभी भी. इट इज इन अ वन डायमेंशन. इट इज इन अ वन डायमेंशन. लेट्स से मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी. ठीक, तो आप समझिए. लेट्स से यहां से अगर हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स से ये हमने बेटा यहाँ पर एक ग्राउंड ले लिया है. यहाँ पर हमने क्या ले लिया? ग्राउंड ले लिया है. ठीक, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप थ्रो करेंगे, लेट्स से आपने थ्रो किया किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से इन द अपवर्ड डायरेक्शन. कितनी वेलोसिटी से थ्रो किया? अपवर्ड डायरेक्शन में u वेलोसिटी से थ्रो किया, राइट? u मतलब क्या हो गया बेटा? इनिशियल वेलोसिटी हो गई. u क्या है? आपकी इनिशियल वेलोसिटी है. क्या यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. ये हमने u इनिशियल वेलोसिटी. ठीक, अब कहानी ये है कि बेटा कि जब आप हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेंगे, जैसे मान लो आपके हाथ में एक बॉल है, आपने उसे ऊपर जोर से फेंका, जितना दम है उतने लगा के फेंका, तो क्या ऊपर चला जाएगा आकाश में? वापस तो आएगा ना वो, राइट? Yes, हाँ. sir. Yes, sir. बिकॉज वो वापस कब आएगा? जब एक ऐसी पोजीशन आएगी जिस पोजीशन पे पहुंचने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो. उसकी जो Yes. फाइनल Yes, वेलोसिटी sir. है वो क्या हो जाएगी? जीरो. सो लेट्स Zero. से आफ्टर रीचिंग एट दिस पॉइंट, तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई? जीरो आ गई. बोलो यस और नो. Yes. Yes, sir. तो लेट्स से ये हाइट पर पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई जीरो. अब जीरो क्यों हुई? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ था, Down. राइट? Upward direction. हाँ. So acceleration due to gravity is in the downward direction. So here we can say acceleration due to gravity downward direction में कर रहा है, इसीलिए उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी. अरे हाँ या ना? Yes, sir. अगर Yes, मान लो आप बहुत स्पीड में दौड़ रहे हो ऊपर Yes, की sir. तरफ, और अगर आपको कोई नीचे की तरफ खींचना शुरू करेगा तो आपकी वेलोसिटी कम हो जाएगी. तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही हो रहा है. आपने बॉल को u वेलोसिटी से थ्रो Yes, किया, sir. लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो वेलोसिटी फाइनली क्या हो रही है? जीरो. एंड आफ्टर हैविंग द फाइनल वेलोसिटी जीरो, बेटा वहां से वो वापस गिरेगा बॉल नीचे. अब क्या होगा? ये जो आपने ऑब्जेक्ट लिया था, ये ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा होगा विथ इंक्रीजिंग Yes, sir. वेलोसिटी. विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी, यस और नो? लेकिन जब Yes, sir. बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है तो हम यहाँ पर जो वेलोसिटी लेंगे उसको माइनस v से रिप्रेजेंट करेंगे. किससे रिप्रेजेंट करेंगे? माइनस v से. Minus क्यों? V. बिकॉज नीचे वाला जो भी है उस डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप जो भी लेंगे वो सब नेगेटिव लेंगे, अपर डायरेक्शन में जो भी लेंगे वो सब पॉजिटिव लेंगे. बोलो बात आई समझ में? तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसा है? माइनस है. यहाँ पर भी एक्सेलरेशन कैसा है? माइनस है. जब बॉल ऊपर जा रहा था तब भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में था तो माइनस से लिया. जब बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है, बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है, अब वेलोसिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? जब बॉल नीचे की तरफ आ रहा है Increase. Increase. वेलोसिटी Increase. Increase होगी. वेलोसिटी फिर से इंक्रीज हो रही है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर वेलोसिटी को माइनस लिया है और एक्सेलरेशन को भी माइनस लिया है, राइट? क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए पहले. No problem. एनीवन हैज एनी डाउट? No, sir. हाँ, sir. अब बेटा यहाँ पर हमने जो कंडीशन ली है वो आइडियल कंडीशन ली है. आइडियल कंडीशन का मतलब ये होता है कि हमने एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया है. आइडियल कंडीशन ऑफ ग्रेविटी का मतलब ये है कि आपने एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया है. बोलो क्लियर है? Yes, sir. Sir. तो जब आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कांस्टेंट मान लिया
इसका मतलब कि ये हुआ कि बॉडी जो है वो जी एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगी, राइट? तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। अरे यस और नो? तो हियर वी कैन से, लेट्स से इन Yes, आइडियल sir. कंडीशन, let's say in ideal conditions there is no air resistance, there is no air resistance, got it? And acceleration due to gravity is constant. बेटा ग्रेविटी कभी चेंज होगी क्या? क्या No, ग्रेविटी sir. की वैल्यू कभी Yes, चेंज sir. होती है? हाँ सर, देखो No, ग्रेविटी की पर वैल्यू एक ही वैसे जगह तो पे नहीं नॉर्मली, होती। देखो ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो नॉर्मली कांस्टेंट ही रहती है, कभी बदलती नहीं है। बट या तो आप बहुत हाइट पे चले जाएंगे तो ग्रेविटी चेंज होगी, या फिर बहुत ज्यादा डेप्थ में चले जाएंगे तो ग्रेविटी चेंज होगी। समझ में आया? मतलब अर्थ की सरफेस से जब आप बाहर निकल जाएंगे तब ग्रेविटी चेंज हो रही है, और अर्थ की सरफेस के कोर में जाएंगे तब ग्रेविटी चेंज हो रही है। बोलो यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? Sir. सर यस। सर सर इसलिए अब आपको क्या करना है कि जो ऊपर जा रहा है उसको पॉजिटिव ले लो, और जो नीचे आ रहा है उसे नेगेटिव ले लो, या फिर जो ऊपर जा रहा है उसे नेगेटिव ले लो, जो नीचे जा रहा है उसे पॉजिटिव ले लो। एक बार साइन कन्वेंशन डिसाइड कर लिया उसके बाद आप उसे चेंज नहीं करना है। समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस चलिए तो अब आगे- इसमें भी फाइनल आंसर तो मतलब पॉजिटिव ही मिलेगा ना, दोनों नेगेटिव लेंगे तो? देखिए हमें आंसर तो सही मिलेगा, दोनों तरीकों से आपका आंसर सेम ही आएगा। बट बेटा जो मेथड मैं इस वक्त बता रहा हूँ कि साइन कन्वेंशन जो मैं बता रहा हूँ कि जो ऊपर की तरफ ले रहे हो ये पॉजिटिव ले लो या फिर नीचे वाले को पॉजिटिव ले लो, आप कोई भी आइदर वे कर लो, आंसर आपको सेम ही मिलेगा। लेकिन जो 9th स्टैंडर्ड में हम यूज करते थे कि जिस डायरेक्शन में बॉडी का मोशन हो रहा था उस डायरेक्शन में हम पॉजिटिव ले लेते थे, वैसा करना कोई जरूरी नहीं है। क्लियर है? सर यस बेटा। ओके सर। यस सर तो कविश, दोनों डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नेगेटिव ही होगा? दोनों डायरेक्शन में मतलब ऊपर से नीचे ला रहे हैं सर तो भी एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, तो नीचे से ऊपर एक्सीलरेशन तो जाएंगे भी। ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है ना, इसलिए नेगेटिव लिया है। सर पर एक्सेलरेशन ग्रेविटी तो नीचे की साइड है, तो फिर बॉल होगा तो सर वो नीचे आएगा तो भी एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव ही होगा ना? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि हमने ये साइन कन्वेंशन डिसाइड किया कि इस पॉइंट से ऊपर आप जाएंगे तो पॉजिटिव और अगर नीचे जाएंगे तो नेगेटिव। बात आई समझ में? अब बताओ एक्सेलरेशन जो एक्ट कर रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में कर रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रहा है कौन सी डायरेक्शन में कर रहा है? नीचे. डाउनवर्ड direction. डायरेक्शन। और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम क्या ले रहे हैं? Negative. Gravity. बस तो यहीं पर आपको इतना याद रखना है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन तो नेगेटिव, अपवर्ड डायरेक्शन तो पॉजिटिव, दैट्स इट। तो सर मतलब अब हमें और- ग्रेविटी डिपेंड होके नहीं लेना है, जो साइन. Let's solve one question on the basis of this only, right? Let's say कि हमने यहाँ पर हम ग्राउंड पे हैं, ये ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर एक बिल्डिंग बना रखी है हमने, बहुत सुंदर सी बिल्डिंग है। Let's say ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है। अब क्या हो रहा है कि ये है आपका ग्राउंड और इस बिल्डिंग पे मान लो कि जय खड़ा है और उसके हाथ में एक बॉल है। अब इस बॉल को उसने ऊपर की तरफ थ्रो किया है, ठीक है। तो जब उसने ऊपर की तरफ थ्रो किया तो कितनी वेलोसिटी से किया थ्रो? तो लेट्स से पहले तो ये ग्राउंड से ये हाइट कितनी है वो देखो। तो ग्राउंड से ये हाइट है बेटा, द डिस्टेंस बिटवीन दिस, ये जो टावर लिया है मतलब ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट है 40 मीटर। कितनी हाइट है इसकी? 40 मीटर, ठीक। और यहाँ से बॉडी को थ्रो किया जा रहा है, मतलब जय ने एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। बोलो यहाँ तक क्लियर है? यस सर. कुछ टाइम के बाद
कुछ टाइम के बाद क्या ये बॉल रेस्ट पे आ जाएगा? मतलब बॉल की फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी? 0। Yes. मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि बॉल जो है वो रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा। यस और नो? ठीक है। Yes, अब sir. ये है कि इस Yes, sir. बॉल को यहाँ से थ्रो किया गया है। कहाँ से थ्रो किया गया? तो दिस इज द इनिशियल पोजीशन। ये इनिशियल पोजीशन है, यहाँ से थ्रो किया गया। अब बॉल को यहाँ से थ्रो करके और यहाँ पर पहुंचा ग्राउंड पे। तो आपको ये पता करना है कि ये ग्राउंड पे जब पहुंच रहा है तो इस ग्राउंड पे पहुंचने पर इस टोटल टाइम कितना है? बॉल को थ्रो करने के बाद ग्राउंड पे पहुंचेगा तो ग्राउंड पे पहुंचने का टाइम बताना है आपको कि टोटल कितना टाइम बॉल ने लिया नीचे पहुंचने में, ग्राउंड तक पहुंचने में। ये क्वेश्चन है। बोलो कि पिक्चर क्लियर है? Yes, सर sir. ये Yes, 40 sir. मीटर क्या है सर? 40 meter is the height of the tower. So you need to find the time to reach a ground. Find the time taken by a ball to reach on the ground. ठीक, ये क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे? अब पहले तो आप इसके 9th स्टैंडर्ड में जैसे सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करके बताता हूँ मैं आपको कि 9th में आप कैसे सॉल्व करते थे उसको। ठीक है, चलिए। ओके सर। जैसे मान लीजिए पहले तो हम ये कहते हैं बेटा कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास में। ठीक, अब सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ये कितना है? लेट्स से दिस डिस्प्लेसमेंट इज S1। ये जो डिस्प्लेसमेंट है कितना है बेटा? S1 है। यस और नो? एंड दैट इज आल्सो इन द अपवर्ड डायरेक्शन। दैट इज आल्सो इन द अपवर्ड डायरेक्शन, राइट? अच्छा, अब एक्सेलरेशन जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है? डायरेक्शन Downward. कैसी है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड। और इसकी वैल्यू कितनी है? -10। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? -10। ठीक, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन कितना आएगा? -10 ही आएगा, उसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। बोलो हाँ या ना? और Yes, ये sir. जो डिस्टेंस है बेटा, Yes, ये sir. डिस्टेंस, ये जो Yes, डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है? ये यहाँ से यहाँ 40 meters. 1 मिनट, 40 मीटर। ये 40 टोटल मीटर। डिस्टेंस कितना है? ये हमने नाम दे दिया S2। यहाँ से लाकर Yes. यहाँ तक, मतलब कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम हमने कंसीडर कर लिया इट इज S2। बोलो यहाँ तक क्लियर है? तो सबसे पहले हम Yes, फाइंड sir. करेंगे इसको पहले सोचेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल थिंक अबाउट दिस कि अगर मैंने किसी बॉल को u वेलोसिटी से थ्रो किया है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है, तो कितना टाइम लगा होगा? इसमें कितना टाइम लगा होगा, राइट? तो वी कैन से v is equals to u plus at। a very basic formula we have, v is equals to u plus at। सर यस बेटा, अब समझिए। तो v is equals to, अच्छा अब आप समझिए फाइनल वेलोसिटी कितनी है? इस फेज की बात 0. कर रहा हूं मैं सबसे पहले। इसमें फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0 Zero. इनिशियल वेलोसिटी Zero कितनी है? Zero. इनिशियल वेलोसिटी 10। 10. एक्सेलरेशन इन द 10 डाउनवर्ड second. डायरेक्शन तो माइनस -10। 10 और ये t Minus टाइम 10. कितना लगा? टाइम कितना लगा? 1 सेकंड। 1 तो इसको मैंने 1 नाम second. दिया t1 टाइम। तो One t1 second. टाइम इज 1 सेकंड। t1 टाइम कितना आ गया? 1 सेकंड आ गया। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? No, doubt. sir. No, sir. no, sir. नो सर। अब मैं ये कह रहा हूँ कि टोटल टाइम हमें लगेगा t1 प्लस t2। अच्छा चलो, t1 टाइम हमें मिल गया 1 सेकंड।
तो 1 सेकंड में बॉडी ने कितना ट्रैवल किया होगा डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास फॉर्मूला है उसके लिए, F इज इक्वल टू ut1 प्लस 1/2। सर आपका आवाज कम आ रहा है। यहाँ पर बेटा मैं कह रहा हूँ कि S1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ut1 प्लस 1/2 at1 स्क्वायर, राइट। अब हमें S1 निकालना है, मतलब Yes, sir. ये वाला डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो S1 इज इक्वल टू u कितना है 10, t1 कितना है 1 माइनस 1/2, एक्सेलरेशन इज 10, एक्सेलरेशन -10 है, इसीलिए हमने वहां पर वो वैल्यू पुट की है -10, राइट। t1 स्क्वायर दैट मींस 1, t1 स्क्वायर दैट मींस 1। So here we can say the displacement S1 can be written as 10 minus ये 2 5 तो Five. S1 कितना आ गया 5 मीटर आ गया, बोलो हाँ या ना। 5 मीटर। Yes, हाँ sir. सर। तो बेटा ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये 5 मीटर आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 5 मीटर आ गया, Yes, ठीक sir. है। अच्छा अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट मतलब t1 टाइम में 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक। अब ऊपर से नीचे आने का टाइम, पहले तो भाई हमने 0 से ऊपर भेजा, उस t1 टाइम में पहुंचा, और उस t1 टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये पिक्चर 5 क्लियर है। अब ये कह रहा है कि Yes. भाई बॉल तो यहाँ पहुंच चुकी है, बॉल हैज रीच्ड हियर एट दिस पॉइंट, राइट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब बॉल यहाँ पहुंच गई है तो बॉल को नीचे आना है। अब S2 डिस्प्लेसमेंट ये है आपका, इसमें कितना टाइम लगा होगा। तो जब बॉल नीचे आ रही है बेटा इस टाइम पे, अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी आप क्या लेंगे, जब बॉल Zero. नीचे आ रही है Zero. उस टाइम पे Zero हो इनिशियल जाएगी। वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 0, 0 हो जाएगी। राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे that displacement S2 is equals to u into t2 टाइम ले रहे हैं मैं उसको 1/2 a t2 स्क्वायर। अब डिस्प्लेसमेंट कितना करना है हमें, तो हमें पता ही नहीं कितना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमें पता है ये 5 मीटर और ये 40 मीटर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 45 मीटर। अब ये डिस्प्लेसमेंट समझिए, ये डिस्प्लेसमेंट हम पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, ये जो 45 Negative. मीटर है वो पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव नेगेटिव लेंगे। क्यों नेगेटिव लेंगे, बिकॉज हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं बेटा, नेगेटिव। राइट। तो वी Yes. कैन से इट इज -45 इज इक्वल्स टू u कितना है आपके पास, तो ये 0 है 0 प्लस 1/2। अच्छा अब एक्सेलरेशन कैसा है, वो भी नेगेटिव है, तो Negative. -1/2, एक्सेलरेशन का वैल्यू है 10 और t2 हमें फाइंड करना है, तो वी विल राइट t2 स्क्वायर। अब आप समझिए ये 2 और ये 5, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया भाई, माइनस माइनस Yes, क्या हो sir. जाएगा, प्लस हो जाएगा, यस और नो। प्लस। तो ये हो गया 45 इज इक्वल्स टू 5 t2 स्क्वायर। क्या यहाँ तक क्लियर है। Yes, sir. अब ये होगा Yes, sir. 5 और ये है 9, तो 5 9 से 45 3 आएगा। 3 t2 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 9। 3 t2 कैन बी प्लस और -3 बट टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो हम लेंगे t2 इज इक्वल नहीं टू होता। 3 सेकंड। अब टोटल टाइम क्या हो गया, तो टोटल टाइम बेटा होता है 4 ये, सेकंड। टोटल टाइम 4 क्या हो seconds. जाएगा कि इस फेज में यहाँ पर टाइम गया 1 t1 प्लस और यहाँ पर टाइम गया t2, तो टोटल टाइम कितना आया t1 प्लस t2, यस और नो। Yes, sir. तो वी कैन से टोटल टाइम, लेट्स से टोटल टाइम t इज इक्वल टू, बेटा माइक किसी का ऑन हो गया, वापस से बंद कीजिए उसको। टोटल टाइम t इज इक्वल टू t1 प्लस t2, तो 1 प्लस 3, तो टोटल टाइम इज 4 सेकंड। तो टाइम कितना लगा नीचे तक पहुंचने में, 4 सेकंड। अब ये वो मेथड है जो आपने 9th स्टैंडर्ड में किया करते थे। अब मैं बता रहा हूँ 11th में कौन सा मेथड आप यूज कर सकते हो। सेम क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि आपको पता करना है कि बॉडी को नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, राइट, यस और नो। अब बेटा मुझे ये पता Yes, है कि sir. मेरी इनिशियल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन मेरी ये है और ये मेरी फाइनल पोजीशन है। तो मुझे तो इनिशियल और फाइनल से मतलब है। अरे भाई वो कहाँ भी दौड़ रहा है, मुझे क्या करना है, मेरे पास तो फॉर्मूला है S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाला, जिसमें वो रिप्रेजेंट करता है S इज अ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। दूसरी चीज ये है
कि यहाँ पर ये जो इनिशियल टू ये जो डायरेक्शन है वो भी कौन सी होती है, इनिशियल टू फाइनल की तरफ ही होती है। डिस्प्लेसमेंट जो रिप्रेजेंट करता है, दिस डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटिंग इनिशियल टू फाइनल। हमेशा याद रखना ये चीज कि डिस्प्लेसमेंट जो है कहां से कहां होता है, इनिशियल टू फाइनल की तरफ होता है। यस और नो? यस सर। सर Yes, sir. यस बेटा। यस सर। सर हमने इनिशियल बीच में से क्यों लिया, जो वहाँ पे v नेगेटिव 0 है वहां से नहीं ले सकते? बेटा इनिशियल तो यहीं से लेना पड़ेगा ना, ये मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ, क्योंकि हमने बॉल को ना यहीं से फेंका है। बॉल कहाँ से फेंका आपने बताओ, बॉल कहाँ पर था? जय कहाँ खड़ा है? इनिशियल पे। जय कहाँ खड़ा है? टावर पे, और टावर ही Yes, इनिशियल sir. पॉइंट है। यस और नो? यस सर। तो बेटा इनिशियल पॉइंट तो आपका यही हुआ ना, ओके सर। ठीक है। अच्छा अब समझिए कि अब इनिशियल टू फाइनल, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है इनिशियल टू फाइनल में? डिस्प्लेसमेंट कितना है बताइए? 40। 40 meter. माइनस 40, माइनस बिकॉज हम हाँ, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं बेटा। इनिशियल टू फाइनल डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो माइनस 40 आएगा। अच्छा Yes, अब sir. बॉल की जो Yes, ये जो बॉल जो प्रोजेक्टाइल हमने जो किया है ऑब्जेक्ट, उसकी वेलोसिटी कितनी है? उसकी वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकंड। यस और नो? वेलोसिटी कितनी गिवन है? यस सर। तो मैं लिख 10 सकता 10 हूँ मीटर पर s सेकंड। इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जिसमें s आपका डिस्प्लेसमेंट है विच इज माइनस 40 मीटर, इज इक्वल्स टू u इज इनिशियल वेलोसिटी। अब u वेलोसिटी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है तो प्लस आएगा इंटू t प्लस 1/2। एक्सेलरेशन कहाँ पर है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा माइनस 40 इज इक्वल्स टू 10t माइनस 5t स्क्वायर। क्या ये स्टेप क्लियर है सभी को? यस सर। यस अब मैं ये वाला जो पार्ट है उसे यहाँ ले जा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का प्लस, तो वी कैन से 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0। इसमें से 5 को मैं बाहर ले लूंगा तो रिमेनिंग आएगा t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2t माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो टाइम आपको मिल जाएगा 4 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना लगेगा इसको? 4 सेकेंड। 4 सेकंड। बोलो क्या ये समझ में आया? यस एकदम सर। आपने डायरेक्ट निकाल दिया Yes, T1 और बोलो क्लियर है? यस हाँ सर। ठीक है, तो ये मेथड है जिसे आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। बोलो किसी को कोई डाउट हो तो बताइए जल्दी से। तो सारे Sir, फॉर्मूला नो कैसे डाउट सर। अरे कोई Sir. डाउट है? ठीक है चलिए, बहुत बढ़िया। सर? यस बेटा। इट्स नॉट बेटा, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये बेसिक है। हमने जो पढ़ा है वही मैंने अप्लाई किया, ये कोई ट्रिक नहीं है, इट इज जस्ट बेसिक्स। आप हर एक इक्वेशन के लिए से ये मेथड्स यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनिशियल फाइनल पॉइंट आपका डिस्प्लेसमेंट है, मैंने वहां पर डिस्प्लेसमेंट ले लिया है। सर यस